I'm Faizan Haqqi and I'm having quite the spiritual experience here at the shrine of Shah Abdul Latif Bhitai, close to Matiari. It's a real clue into the cultural background of this place. These traditions have been practiced here long enough for the people to call them their own. I found much of Sindh in these travels to be a far more broad-minded, open-minded society than we find in most other provinces of Pakistan. There aren't that many. And it's survived. And they make wonderful music, by the way. It's not just a cultural show, it happens here every night. We're not here during some festival. We just came here on a weeknight and found it to be as brightly lit and well attended and well performed as it is. The place reeks of authenticity, and that's what makes you love it in the first place. There's a genuine vibe here, not a fake one. And the people love their saints and sin. Bhitai is part of Sindhi folklore, this Sufic background. It makes me sad that it's all become limited to the Ajrak as an identity rather than the wonderful music, the language, the spiritualism. Nobody makes a show of their Farah Dili here, you know. They let you know that it's available if you want. It's not in your face, it's not forced on you. And the site is also well maintained. The vibe inside and out, they complement each other. And clearly it means a great deal to the people who throng here in the thousands every day. Music is also, you know, you can tell they take it seriously. It's not just a show for tourism. It's real.
अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं फैज़ान हक्की। 365 एडवेंचर्स पे आज अनूशे के बगैर मठियारी आया हुआ हूं, और मठियारी सिंध जो कि कराची से ज़्यादा दूर नहीं है, एक एग्रीकल्चरल वंडरलैंड है। Huge gigantic mango trees on one side, grapefruit and musambi trees on the other, bananas right behind me which get exported all the way to Afghanistan, Iran and Central Asia. This area produces some of the best bananas in the country, and they really are very good. And it's not just that, it's broccoli, mooli, you name it. All the sabzis are growing here, and the land is so good, it's so rich, so fertile, being right next to the Indus River, that they produce wonderful fruits and vegetables all year. Everything from coconut trees and date palms to all the sabzis I mentioned are growing here. So it's a very special place in terms of agriculture. यहाँ पर आकर नेचर के सिस्टम्स को मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे केले काश्त होते हैं, अभी अभी बकरियों को केले दे दिए गए हैं। यू कैन सी दे हैविंग द फ्रूट सैलड, सो हैप्पी। यहाँ के लोकल हिरन छोटे बच्चे हैं तो उनको छोटे बकरी के बच्चों के साथ रखा हुआ है। और इस तरफ आ जाएं तो एक तरफ बाजरा है, दूसरी तरफ गंदम का भूसा, इनको मिक्स करके बकरियों और गायों के लिए बिरयानी बनती है, उनकी बिरयानी। यू सी हियर सम यंग बफलोज। इट्स द famous Maliri red cow of Sindh. That's a thari cow. You can tell from the not just the white skin but the grey mixed with it. And just when you walk out of this door, it is banana land. ये G9 के नाम से मशहूर है, लेकिन ये ज़्यादातर इंडोनेशिया और इंडिया से आते हैं हमारे पास। जैसे ढाका हुआ और बॉम्बे हुआ, उन्होंने अपना नाम दे दिया। अभी ये G9 है। G9 का लंबा होता है ये, और फिर इसके जो फ्रूट है उसमें इतना वजन हो जाता है कि ये बिल्कुल डाउन हो जाता है। केले का दरख्त अपना एक दफ़ा फ्रूट निकाल चुका होता है, काट देते हैं तो दरख्त को काट देते हैं। ये देखिए कटा हुआ है, ये सामने देखिए अंदर। अच्छा, मगर नीचे से तय से नहीं काटते, ऊपर से काट देते हैं? नहीं, इसको बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल ऐसे खुद निकाल के नहीं, ऐसे ऊपर से काटते हैं। उसमें क्या है कि अगर ऐसे करोगे जो दूसरा बच्चा हो रहा है उसका, जैसे ये छोटा बच्चा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सही, ये देख रहे हैं, अब ये बच्चा है, उसके साथ परली तरफ देखें दूसरा बच्चा जा रहा है, फिर आप देखें तीसरी देखें एक और है, ये 4-5 इकट्ठे हैं। इसको काटोगे दूसरा शुरू हो जाएगा, तो तीसरा जो है फिर वो अपना निकाल देगा, वो फ्रूट निकाल देगा। मतलब इसको कंटिन्यू सिस्टम बना हुआ है, जैसे गाड़ी के सिलेंडर्स होते हैं। हाँ। यहाँ जो हमारा जो इसको कटाई वाला, जो सफाई वाला है, वो उस तरीके से इसको करता है कि उसको पता है कि भाई 3 महीने के बाद मेरा कौन सा बच्चा कहाँ होगा, सीजन में आएगा। ये मेरा सीजन के बगैर आएगा, लेकिन ये मुझे पैसे अच्छे देगा। वो एक मेंटालिटी है और उस तरीके से उसको काटते हैं। वो इसको ऐसे बनाते जाते हैं। हमारे पास ये G9 है, ये फिर एक नया वैरायटी आई है जिसका नाम हमने विलियम रखा है। विलियम तो विलियम है, ये G9 है। फिर एक बॉम्बे ढाका है। एक और बनाना है, वो हमारे पास नहीं आ रहा, वो ब्राज़ील वाला। वो उसको हमने नाम रखा है, उसका यहाँ इंडिया से आया है, उसका नाम हमने रखा है इलायची।
उसका जो ऊपर वाला जो खाल है वो बिल्कुल बारीक सा है, कागज़ की तरह। Really? और उसका जो दाना है वो दाना समझो कि 2.5 इंच का होता है बस। बस फिर उसका मोटा होता है। आप पके हुए आपके पास अगर 2-3 दर्जन उसके आपको मिल जाएं, Really? आप बोलोगे कोई और नहीं खाए मैं खाऊं बस। ये माशाल्लाह इतने बड़े केले हैं। ये अभी G9 है, इसका बड़ा पौधा होता है। लग और रहा है। वो जो दूसरा है वो छोटा होता है उसका बड़े छोटा शानदार है। ये पत्ते हमारा होते हैं। ये अपना सोलर सिस्टम है, ट्यूबवेल सोलर सिस्टम अपना अंदर इसमें लगाया है हमने। ये हमारे घर हैं हिंदुओं की और ये उनका इबादत गाह है। अरे ये मंदिर उनका भी बना हुआ है। ये मंदिर है इनका। चलो बाबा खुशा। क्या हाल है? कैसे हो? तो ये हिंदू है हमारे पास, तो इनको हम बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और फिर इनको हमारी इनको कोई वजह फोर्स्ड कन्वर्जन ना करे। हाँ नहीं करे, इनको कोई तंग नहीं करता हमारी वजह। भाई हिंदुओं का गाँव है, इनसे दूर हो जाओ भाई। यहाँ अल्लाह के शुक्र से कोई चोरी का अब नहीं है कि कोई चोरी यहाँ कोई चोरी करे हमारे सुना एक पास। ज़माने में 80s 90s में यहाँ बहुत डाकू हुआ करते थे यहाँ बहुत डाकू थे। और सुना है लोग छोड़ छोड़ के गए हैं यहाँ ये सारी ज़मीन छोड़, यहाँ 2,000 रुपये एकड़ था। 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। हमने पता नहीं, यहाँ से आपको दिखाऊंगा पता नहीं कितनी ज़मीनें हमारे पास दे के गए हमारे वाले। ये ज़मीनें तुम कर लो भाई, ये रिंद नहीं उठेंगे। Really? हाँ हम नहीं आप लोग उठे, रहे? हम रहे यहाँ पे। ये अब आपका मीठा पानी है, फर्स्ट क्लास। तो ये भी पीने के लायक। हाँ 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 तो अगर मैं जाके पीऊंगा हाँ बिल्कुल पिए, बिल्कुल पिए। ये चीज़ें हम लोग नॉर्दर्न एरियाज में करते हैं तो आज सिंध में हो रही हैं। आप गर्मियों में ये पानी में नहाएंगे ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। बताया जा रहा है कि गर्मियों में ये पानी इतना ठंडा होता ठंडा है होता है। कि आप इसमें घुसते हुए सोचेंगे और सर्दियों में थोड़ा सा गर्म होता है। फर्स्ट क्लास होता है। Considering it's November now, the water is of a good temperature. You could bathe in this.